friends, and welcome back to my channel. My name is Khushbu Jain, and Vedic Math Mastery is my channel name. So, in the today's video, we'll basically discuss how imperfect square roots we can find out. How can easily we can find out imperfect square roots in just 2 to 3 seconds in through the very short technique. See, there is a short trick method and there is a long trick method as well. But in the long trick method, I will not discuss in this video because you will get confused. So, as you all know that my method is teaching is basically uh, going to step by step, not to take uh, in a very complicated manner. No. See, how can we easily get the imperfect square roots? How can we find out? So through the Vedic maths and through the short tricks we are basically now learning. So through the short technique, how can we easily find out? So there are some few steps we have to follow, and when we follow the steps, then we get the answer. See, there is some numbers as an example I'm giving you. I've given that 1 into 1 is 1. This is the perfect squares. These are the perfect squares that 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25. These are these perfect square roots and so on. Okay, so there are some steps we have to find. I just tell you how we can find out. See, always just in the first step, find the see two nearest perfect square roots which are close to n. N means whenever you are finding the imperfect square root, so whatever the number in the question you have given, so just find the two nearest perfect square roots. Okay, so I'm just giving you a number. See, I'm just giving you a number. So just before starting this video, I just want to tell you you are watching my videos, and if you think that this is really knowledgeable and helping in your competitive exam if you are preparing for, so just subscribe and just like the channel, and you will definitely get more and more very in a easy manner, very good techniques in upcoming videos, and definitely you will learn something from my videos, definitely. And मेरा जो तरीका है वो सिखाने का आपको पता है स्टेप बाय स्टेप आई जस्ट वांट टू टीच यू through these videos you don't need to do extra need practice at your home, so just try to watch if you are giving your quality time to watch my videos, so just watch it, and if you have any doubt you can write in the comment section below. So just start the video before wasting time. So there is the one question I'm just giving you. See, if I'm giving you a 29 in the square root. So this is the imperfect square root. As you can see here, 25 basically square root होता है, 29 आपको समझ में आता होगा ये imperfect square root है, ठीक है? तो इफ यू अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो भी आप टेक्निक से करोगे तो आपको तब भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 29 इट्स अ इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड द टू नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स व्हिच आर बेसिकली क्लोज टू 29, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि 29 के नियरेस्ट यहाँ पर एक तो क्लोज में 25 जा रहा है, एक अबव ले लेते हैं, सॉरी बिलो ले लेते हैं और एक अबव ले लेते हैं, तो 25 एंड 36, तो टू नंबर्स आर बेसिकली यहाँ पे मैं आपका मार्क कर देती हूँ 25 एंड 36। सो बेसिकली हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ज्यादा नियरेस्ट होता है ना, यानी कि 29 के नियरेस्ट 25 है या छोटा है वो लेते हैं, बट आप यहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक में चाहो तो 5 भी ले सकते हो, चाहो तो आप 6 भी ले सकते हो, इधर basically you can take 5 or 6, but 25 is more closer, so you can use easily 5, okay? बट मैं आपको 6 से भी करके दिखाऊंगी, ओके? सो जस्ट आप इसको एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये, क्योंकि मैं इसको आपको 6 से भी करके दिखाऊंगी। तो 29 डिवाइडेड बाय 5 आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है? फाइंड द टू नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स एंड व्हिच आर क्लोजेस्ट टू 29, जो भी नंबर दिया है, व्हेन आपको दिया होगा उसके बाद डिवाइड द गिवन नंबर बाय वन ऑफ दोज नंबर, जो आपने सिलेक्ट करा ना इन दोनों में से, उस नंबर को आपको सेकंड स्टेप में से डिवाइड करना है। तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, आप चाहो तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। Now in the third step, what you have to do is take the average of the number
प्रोड्यूस एंड द रूट। बेसिकली आपको क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। मतलब आपको बेसिकली जब 5 आपने लिए तो उसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5.8। ओके, तो आपके पास निकल जाएगा आंसर 5.8। जब आपके पास 5.8 आंसर निकल जाएगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले इन दोनों को नंबर को ऐड करना है, एवरेज को और इसको, यानी कि एवरेज और जो आंसर आपका निकला है। सो टेक द एवरेज ऑफ द नंबर एंड प्रोड्यूस द रूट। आपको इन दोनों को एडिशन करना है, ठीक है। तो आप दोनों को एडिशन कर लो, 5 प्लस 5.8। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, इन दोनों को सिंपली एडिशन कर लूंगी। तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 10.8। ओके, व्हेन आई विल गेट 10.8, so what I have to do is I have to simply check if the square this average result in the original number or not. So what I have to do, 10.8 को बेसिकली मैं क्या करूंगी, एवरेज निकाल लूंगी। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है कि 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.4। So 5.4 basically answer 5.4 is that the square root of 29। यानी कि 29 का अगर मैं स्क्वायर रूट बोलूँ तो मेरा आंसर आ गया 5.4। और 29 हमारा इम्परफेक्ट था, तो इम्परफेक्ट का मेरा आंसर आ गया 24। ओके, मतलब 29 का मेरा आंसर आ गया 5.4। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसी का मुझे 6 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट। सी, आपको क्या करना है, अगर मैं बोलूँ कि 29 को 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 29 इज ऑल्सो क्लोजर टू 36, दोनों सेम सेम जा रहे हैं, तो ठीक है। अगर हम 36 6 से भी लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल, मैंने आपको बोला 6 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकाला इसका 4.8, इसका आंसर आ जाएगा। मुझे इसका 6 और 4.8 को इन दोनों को एडिशन करना है, तो इन दोनों को एडिशन करके मेरा आंसर आ जाएगा 10। अब थर्ड स्टेप, मेरा फोर्थ स्टेप क्या था, 10.8 का एवरेज करना है, विच इज 2। 2 से डिवाइड करते हैं एवरेज में हमेशा, 2 से डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा 5.4। आप देख सकते हो लास्ट वाला आंसर भी मेरा 5.4 था और अब जो आंसर आया वो भी 5.4 आया। सो यू गेट द सेम आंसर। तो इधर यू कैन टेक 5 और 6, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। बट आपको बस ध्यान रखना है कि यू हैव टू follow the steps, find the two nearest perfect square roots which are closer to basically 29 and divide the given number by one of those। आपने जो भी नंबर लिया you have to divide the number and take the average। फिर आपको एवरेज लेना है एडिशन करने के बाद में, और उसके एवरेज लेना है एंड चेक इफ द स्क्वायर द एवरेज रिजल्ट ओरिजिनल नंबर और नॉट। आप देख सकते हो बेसिकली 5.4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 टाइम्स then definitely you will get 29। So if it doesn't then repeat the above steps। तो अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप दोबारा से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपको जैसे अगर कोई बड़ा स्क्वायर रूट दिया हो तब, तो मैं आपको इसके लॉन्ग डिवीजन यानी कि लॉन्ग ट्रिक मेथड जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगी इन दी नेक्स्ट वीडियो में, कि लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग जो ट्रिक होती है इसकी लॉन्ग ट्रिक मेथड में इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सो तब तक के लिए just keep watching। If you think this really very good technique, you can like and subscribe my channel and just write in the comment section if you have any doubt। So till then, bye bye and stay healthy।